بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج 19 اپریل 2024 ہے اور میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان، جنہوں نے بڑی سختی سے یہ آرڈر کیا ہے، یہ حکم دیا ہے، یہ مشورہ دیا ہے کہ جو ہماری ہائی کورٹس ہیں ان کو چاہیے، ان چیفز کو چاہیے کہ فوری طور پر جتنی سیٹیں خالی ہیں فوری طور پہ وہاں پہ ججز ایلیویٹ کیے جانے چاہیے۔ لیکن دوگلی پالیسی کا یہ عالم ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 2023 کے لاسٹ میں تقریباً چیف جسٹس آف پاکستان بنے تھے، تو ان کی موجودگی میں سپریم کورٹ کی سیٹیں ابھی تک خالی ہیں، لیکن کیونکہ 2/3 کی اکثریت مطلوب تھی، اس لیے جو ججز لوअر کورٹس یعنی کہ ہائی کورٹس کے جو سینئر ججز تھے ان کو انہوں نے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ نہیں ہونے دیا، ان کی سمری نہیں بھیجی، ان کو اوپر نہیں کال کیا، وہ سیٹیں فل نہیں کی، کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ جمہوریت کا بول بالا نہ ہو جائے، سیاسی جماعتیں اپنی زور زمائی مرڈ پہ نہ کر لیں اور عوام اپنے نمائندگان کی الیکشن میں خود الیکٹ نہ کر پائیں۔ اس لیے اتنے ظلم ڈھائے گئے، لیکن دوگلی پالیسی نے چیف جسٹس کو بولنے نہ دیا، بلکہ یہ بذات خود معاون رہا ایجنسیوں کا، چوروں، ڈکیٹوں، لٹیروں اور 10% کا، اور دنیا کے کرپٹ ترین شخص جس کو ہم نواز شریف کہتے ہیں، جو اب آج کل نیا بیانیہ بنانے جا رہا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ وکٹیمائز کر رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے کہ تمہیں کوئی وکٹیمائز نہیں کیا جا رہا، تمہیں تو سہولیات دی جا رہی ہیں، لیکن کیونکہ ہر بندہ جس کے پاس سیٹ ہے وہ دوگلا پن کا پورا اظہار بھی کر رہا ہے اور اپنی کاروائی بھی دکھا رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے جو قوم کے ساتھ کیا ہے، قوم تا وقت مرگ، تا وقت قیامت آپ کے اس دوگلی پالیسی اور کردار کو کبھی نہیں بھولے گی۔ قوم جان چکی ہے کہ جو سینئر ترین ججز تھے لوئر کورٹس کو کے، جس میں جسٹس ابراہیم صاحب تھے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عمر فاروق صاحب چیف جسٹس، جو لاہور ہائی کورٹ کے امیر بھٹی صاحب چیف جسٹس تھے، یہ سینئر ترین لوگ تھے، لیکن آپ نے ان کو سپریم کورٹ میں نہیں آنے دیا، کیونکہ آپ کے بھی اس میں تحفظات ہیں، آپ کی ایجنسیوں کے بھی تحفظات ہیں، کیونکہ پہلے تو آپ باغی تھے کہ ایجنسیز کے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف چلنے کا ایک اعلان کرتے تھے، لیکن اب آپ نے وہ کیے ہوئے اعلان وہ بھی دفن کر دیے ہیں۔ قوم جان چکی ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارے لیے اور اس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ایک شرم کا مقام تھا کہ جب یہ پارلیمنٹ میں گیا اور اس نے آصف زرداری 10% جس کو دنیا کہتی ہے، جس کو قاتل کہتی ہے، اس کی باتیں ایسے کان لگا کے سنی جیسے احادیث فرمائی جا رہی ہیں۔ شہباز شریف 1100 ارب ڈکار گیا، جس کی حفاظت ہمارے قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اور ایجنسیوں نے بھی کی، لیکن اس کی باتیں سنتے رہے۔ جو کل اس نے خطاب کیا قوم سے، جو پارلیمنٹ سے، صدر آصف علی زرداری، کہ وقت بہت کم ہے کہ آپ کے پاس لوٹنے کا ٹائم تھوڑا ہے، آپ نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس لیے آپ کے پاس وقت کم ہے۔ قوم جانتی ہے کہ آپ چور لٹیرے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ تھامے ہوئے چل رہے ہیں اور آپ نے اس ملک کا بڑا غرق کر دیا ہوا ہے۔ دیکھیں، آپ میں انسانیت، اخلاقیات، اس ملک میں آئین قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں، دفن کر دیا ہے، کہ کب سے یاسمین راشد سب کو پتہ ہے
وہ कैंसर की मरीज है, उसकी हालत कितनी संगीन है, लेकिन उसको आज तक आप जमानत नहीं होने दे रहे। आप सब इसमें मुलवस हैं, लेकिन इसका इंशाल्लाह आपको हिसाब देना पड़ेगा। इससे कबल हम भी सब जानते हैं, अदलिया भी जानती है, ये काजी फैजी साहब भी जानता है कि बुशरा बीबी के कमरे में इन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं। बुशरा बीबी को जहर दिया गया जिसका मेडिकल नहीं होने दे रहे। मेडिकल चेकअप उसका बुनियादी हक है, लेकिन अदालतें आज तक उसका मेडिकल चेकअप नहीं करवा सकी, उसके टेस्ट नहीं हो सके, और बल्कि उसको मजीद टाइट किया जा रहा है। उसके कमरों में मजीद कैमरा जद नस्ब किए जा रहे हैं कि उसकी हरकतों सकनात देखी जा सके। लेकिन हमारी एजेंसियों के लिए भी, हमारे लिए भी, और एजेंसियों को तो जो नंगा हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने किया है वो याद रहेगा। और पहले देखें 9 मई के वाकया के बाद लोग बड़े परेशान थे, किसी को बोलने नहीं दिया जाता था। लेकिन आफरीन है, सल्यूट है उन जजेस की अजमत को जिन्होंने लेटर लिख के ये कौम को भी बताया और आला अदलिया को भी बताया और जुडिशियल काउंसिल को भी बताया कि हमें धमकियां दी जा रही हैं। ये यहां तक नहीं है बात। देखिए, जो जजेस अपने हलफ की पासदारी करते हुए, जो जजेस आइन और कानून के तहत फैसले करते हैं, और जिसमें पीटीआई के लोगों को, और जो एक झूठा कुआ 9 मई का बनाया हुआ था उसमें लोगों को इंसाफ मिलता है, तो उस जज को या तो उसके खिलाफ रेफरेंस भेज देते हैं या उसको उठा के कहीं और फेंक देते हैं। उसे विक्टिमाइज करती हैं हमारी एजेंसियां भी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी, हमारी एग्जेक्टिव भी। और काजी फायजी साहब तो है ही उनकी पैदावार, और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में दिन रात लगा हुआ है। जो सबसे बड़ी बात कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, जरदारी, नवाज शरीफ लंदन प्लान की एक कहानी की इख्तिताम पे बैठे हुए हैं, और जब कौम ने 8 फरवरी को इनका निस्तो नबूद कर दिया, इन 13 जमातों को दफन कर दिया, एजेंसी जो करप्ट जर्नल बैठे हुए थे उन सब का जनाजा निकाल दिया, तो नवाज शरीफ पीएम नहीं बन सके, लेकिन अपनी बेटी को सीएम बनाने में कामयाब हो गए, अपने भाई को पीएम बनाने में कामयाब हो गए, और मजे मजे की सारी वजारतें ले ली सारे। देखें, इन हमारे काजी फैजी साहब ने नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पे जाके आगे से इंसाफ दे दिया। हकीकत यह है कि कौम को यह इल्म होना चाहिए कि काजी फैजी साहब किस हद तक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, 2/3 की अक्सरियत देने के लिए कहां तक जा रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि मेरी सर्वाइविंग इसी में है, मेरे भी फ्लैग जोन से हैं वो इसी में कायम रहेंगे। देखिए, पीडीएम 1 जब इन्होंने न्यूट्रल के साथ मिलकर तैयार की तो इसका भाई ही वजीर आजम था, लेकिन नवाज शरीफ की हिम्मत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान आए। उसके मुकम्मल इख्तियारात थे, आर्मी चीफ मर्जी का था, सब कुछ मर्जी का था, लेकिन नवाज शरीफ ने ये गलती नहीं की कि मैं गीली जगह पे पांव रखूं। वो पाकिस्तान वापस नहीं आया, उसकी बीमारी, उसके प्लेटलेट्स मुकम्मल ही नहीं हो रहे थे, हार्ट की सर्जरी नहीं मुकम्मल हो रही थी, लेकिन यूं ही एक डमी, एक अदलिया के माथे पे काला कलंक, जिसको हम काजी फैजी साहब कहते हैं, जब उसने हलफ बर्दारी की बीएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जब वो इस मनसब पे बैठ गया तो नवाज शरीफ की मौजें हो गई। उसको पता चल गया कि अब ये मेरे भाई से भी आगे जाके मेरी मदद करेगा, और काजी फैजी साहब ने अपने भाई की, उसके भाई से भी बढ़कर नवाज शरीफ की मदद की। और तारीख में हमने पहली बार देखा है कि कोई इश्तिहारी को मुलजम सजा याफ्ता जिसको एयरपोर्ट पे जाके आगे से अदालतों का अमले के लोग उसको इंसाफ देने पहुंच जाएं, ये अगर मुमकिन हुआ है तो काजी फैज के दौर में ही हुआ है जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं। इससे पहले कभी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। देखिए, मौजूदा हालात में
जो गरीब आदमी है उसका जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। हमारे हालात ये आ चुके हैं कि हम कर्ज देने के लिए, कर्ज का सूद देने के लिए भी हमें अब कर्ज लेना पड़ रहा है। सूद की अदायगी भी हम पूरी कौम अदा नहीं कर पा रहे। और मजीद ये जो चोर लटेरे डाकू बैठे हुए हैं, ये पहले भी 1700 1100 अरब हड़प कर चुके हैं, और जो हमारे रिजर्व से 22 अरब डॉलर वो भी हड़प कर चुके हैं। और हमारे पास कुछ भी नहीं कि हम मुल्क का सूद ही अदा कर सके। ये देखिए जो बयानी आजकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, राना सनाउल्लाह का सुने जरा क्लिप। जवेद लतीफ जो नून लीग के स्पोक्स पर्सन है, उनके बयान सुने। और नवाज शरीफ भी बागी बनने की कोशिश कर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के मैं एंटी हूं, लेकिन कौम जानती है एस्टेब्लिशमेंट, आप, नून लीग, पीपल्स पार्टी सब एक पेज पे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और मजीद करने जा रहे हैं। और 2/3 की जो आपकी सोच थी वो इंशाल्लाह कौम पूरा नहीं होने देगी। देखें, बंदर बांट की हदें क्रॉस हो गई हैं कि जो स्पेशल सीटें थी, मखसूस सीटें थी केपीके की, वो 7 सीटें मौलाना फजल रहमान और नून लीग ने आपस में तकसीम कर ली हैं। और एक सीट जो मिनॉरिटी की थी उसके लिए लड़ पड़े हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन जो बिका हुआ शख्स है वो जानता है ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई की थी और उनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि ये सारे चोर डाकू लटेरे एक पेज पे हैं और मुफ्त माल के लिए लड़ पड़े हैं, लेकिन इंशाल्लाह कौम अपना हिसाब जल्द आपसे लेगी। आइन कानून की बहाली मुल्क में करा के छोड़ेगी। और अब मेरे कायद को जेल में फिर दोबारा खतरात लाक हो गए हैं। 1 नंबर एजेंसियां हमारी ऊपर हैं, वो दिन रात जीएचक्यू के करीब बैठी हुई हैं, लेकिन मेरे कायद को जेल में फिर जान का खतरा है। दहशत गर्दी का वहां पे खतरात मंडला रहे हैं। और हम 1 नंबर लूटने, दुकानें चलाने, प्लाजे बनाने, और हर रोड पे, कैंट के हर रोड पे बड़े बड़े मैरिज हॉल खोलने में लगे हुए हैं। और मेरा कायद ना इनसे डरने वाला है ना झुकने वाला है। वो मर तो सकता है, डील नहीं कर सकता। मेरे कायद की यही पहचान है कि ना वो करप्ट है, ना वो बिकने वाला है, ना वो डरने वाला है। वो अल्लाह पे भरोसा करके बैठा हुआ है और कौम मेरे कायद के साथ खड़ी है। और इंशाल्लाह ये जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें अल्लाह के फजल से मेरे कायद के सिलेक्ट किए हुए उम्मीदवार वो 100% अवाम उन पे इत्मीनान करती है और वो जीतेंगे। और इंशाल्लाह जो आरओ हैं वो सुन लें, अगर इन ज़िमनी इलेक्शन में जो 21 अप्रैल को होने जा रहे हैं, अगर इन ज़िमनी इलेक्शन में आपने न्यूट्रल्स के कहने पे कुछ किया तो कौम आपको भी इबरत का निशान बना देगी। कौम इंशाल्लाह मुल्क को आगे लेके जाएंगे। इंशाल्लाह आइन कानून की बहाली करा के छोड़ेंगे और करप्ट जजेस का एहतसाब करके छोड़ेंगे। करप्ट जर्नैलों का भी इंशाल्लाह एहतसाब होगा। बाकी जितने टोपी ड्रामे किए जा रहे हैं ये कौम देख रही है। इंशाल्लाह कौम आगे जाके रहेगी मेरे कायद की क़यादत में। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।